Good morning, student. In previous lecture, you studied about forms of private sector enterprises. These enterprises can be divided into five category. First, sole proprietor, joint Hindu family business, partnership, cooperative society, and company. Okay. So first of all, we studied about sole proprietor. Sole means single, and proprietor means owner. So and features already we study about this sole proprietor, single ownership, formation and closure, easy to formation and closure, unlimited liabilities, individual risk bearing and profit recipient, one man control, no separate legal entity, lack of business continuity, and small size. These 8 features we already studied this one. Now merit of sole proprietorship. Okay, and now this we are going to study about the merit and the advantage of sole proprietorship firm. ओके इसके फ़ायदे क्या हैं? ओके हमने इससे पहले इसके फीचर्स जो है कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो है 5 सेक्टर में डिवाइड किया गया है जिसमें हम सोल प्रोप्राइटर पढ़ रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टडी द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर. फीचर्स ऑलरेडी वी कंप्लीटेड. नाउ advantages, either merit of this sole proprietor. First, quick decision. Okay, quick decision. In sole proprietor firm, all the decisions are taken by proprietor himself. Okay, all the decision taken by proprietor himself means जो owner होता है वो सारे decision वही लेता है. No need to ask anyone. Okay, he is not सपोज टू बी कंसल्ट एनी वन इन द वेस्ट टाइम. उसको ये ज़रूरत नहीं होता किसी और से कंसल्ट करे, वेस्टिंग ऑफ टाइम. एंड बाय क्विक डिसीजन इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन विच ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन. देर आर नो डिले इन बिजनेस कैन क्विकली अडॉप्ट इट सेल्फ फ्रॉम चेंजिंग द इन्वायरमेंट. और ओके देर आर नो डिले, यहाँ पे कोई डिले नहीं होगा. एंड बिजनेस कैन क्विकली अडॉप्ट इट सेल्फ changing the environment according to changing environment. Owner himself take a decision according to environment and implement at the time, so that production cannot be affected by the delaying of time. Okay, this is a good point. This is first advantage of this quick decision. Okay, in other way we take other example of any industry. So there are, suppose in partnership, so one member, one management cannot take any decision on the basis of himself. Okay, he must be take advice his superior, then manager, then top level manager. So there is a delay in time. So in proprietorship, this is the first merit, quick decision, because he is the owner and whatever decision he is taken by, it's right, so he will take a decision. So and she can take a quick decision and implement and change according to environment. Okay, second point, confidentially. First, quick decision complete. Second, confidentiality. Means confidentiality means the sole proprietor is not accept to share his secret with other. Okay, in these points, no need to share his idea secret to other person. Okay, there is no legal compulsion for sole proprietor to publish his account for the public. All the decisions are taken by proprietor. Okay, all the decision. Already first point we studied, all the decision taken by the proprietor or by the owner, and so it become easy for him to maintain secrecy and get better competitive strength. Okay, this is good for his organization. Now third, डायरेक्ट इंसेंटिव. ठीक है, जैसा हमने पढ़ा है क्विक डिसीजन, वो डिसीजन लेके. और सेकंड पॉइंट, कॉन्फिडेंशियली, जितने भी सीक्रेट वो खुद रखता है, उसको किसी बताने की ज़रूरत नहीं होता है. नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इंसेंटिव. डायरेक्ट इंसेंटिव, इन सोल प्रोप्राइटर फर्म देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इफोर्ट एंड रिवार्ड. ओके, डायरेक्ट वट एवर ही इज डूइंग फॉर हिज कंपनी एंड ही गेट अ बेनिफिट एज अ रिवार्ड, एज अ मनी, विच मीन्स इज प्रोप्राइटर puts extra effort, then profit increase and proprietor gets extra income. Okay, वन जब प्रॉपर्टी जो ऑनर होता है वो यदि एक्स्ट्रा एफोर्ड कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, तो जो भी बेनिफिट होगा उसके लिए एज ए रिवार्ड मिलेगा, उसका इनकम बढ़ेगा. सो प्रोप्राइटर इज ऑलवेज मोटिवेट टू वर्क एक्स्ट्रा टू गेट एक्स्ट्रा रिवार्ड. ओके, इसलिए प्रोप्राइटर जो होगा उसको पता है कि यदि हमने इसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया था, एक्स्ट्रा जो बेनिफिट होगा वो उसको खुद का होगा, ना कि कंपनी का होगा. तो इट इज़ अ डायरेक्ट इंसेंटिव गोज टू द
ऑनर और प्रोपराइटर. नाउ fourth one, sense of accomplishment. There is a personal satisfaction involved in working for oneself. Okay, there is a personal satisfaction. Personal satisfaction, खुद का उसका satisfaction होता है. Is and the success is business not only contribute to self satisfaction but also instill in the individual sense of accomplishment and confidence. ठीक है, इसमें जो उसका कंट्रीब्यूशन खुद का होगा ना कि सेटिस्फिकेशन, इसके अलावा भी उसका जो है कंट्रीब्यूशन, जो अकम्पलिशमेंट, कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ता जाता है. यदि उसका इफर्ट अच्छा है तो उसका खुद का एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन भी होगा. ठीक है, आज मैंने इतना का वर्क किया, इतना रिवार्ड मिला, और इसके बाद उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा. तो यह होता है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट. नेक्स्ट लास्ट, इजी टू फॉर्म एंड डिसोल्व. इजी टू फॉर्म एंड डिसोल्व. A sole proprietorship organization is easy to form. Okay, जैसा कि हम पहले भी इसका फीचर्स पढ़ सके, easy to form in closing. So no legal formalities are involved in the setting of this type of organization. इसमें ठीक है, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होता है. एंड इट इज़ नॉट गवर्न बाय एनी स्पेशल लॉ, और इसमें कोई स्पेशल लॉ का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. एंड द सोल प्रोप्राइटर कैन बी क्लोज बिजनेस वेन एवर ही डिजायर विदाउट एनी लीगल फॉर्मलिटीज. इट कैन बी क्लोज बाय पेइंग बैक इट्स डेप्ट. जो भी इसका डेप्ट है, कर्जा देखिए, वो बंद कर सकता है और जब चाहे इसको स्टार्ट कर सकता है. तो ये इसके कुछ मेरिट्स, फ़ायदे हैं. ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं. ओके, नाउ डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर फर्म. ओके, फर्स्ट लिमिटेड. जैसा कि हमने ऊपर देखा है, मेरिट, फ़ायदे, जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस यदि स्टार्ट करता है कोई व्यक्ति, तो एडवांटेज है द मेरिट. ऑलरेडी वी स्टडी अबाउट दिस क्विक डिसीजन, कॉन्फिडेंशियली, डायरेक्ट इंसेंटिव, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड इजी टू फॉर्म. दिस आर 5 points we study, 5 advantages when we settle sole proprietor business. But there are some demerits also given here. Negative, we already know about every coin has two sides, head and tail. It means positive point as well as negative point. So there are 4 negative points given here. So first, limited resource. In sole proprietorship firm finance supplied by proprietor himself, from which wealth और फ्रॉम बोरोइंग. ओके, ये तो उसके पास खुद का पैसा है, ये उधार लेकर स्टार्ट करेगा. देयर इज अ लिमिटेड टू क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पर्सन. ओके, सिंगल पर्सन का कैपेसिटी लिमिटेड होगा. ठीक, तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स होता है. या तो उसके पास खुद का, ठीक है, इंडिविजुअल चाहे वो 1 लाख 2 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ हो सकता है, या कुछ बोरो लेगा मार्केट से, उधार लेगा. सो देयर इज अ लिमिट टू क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल person. This reduce the scope of the business growth. So it is reduce the scope of the business growth. Okay, when the in partnership business company, so it can be easily grow. Okay, the fund are not sufficient for medium scale or large scale business. Okay, small scale business can be started by sole proprietors, ownership. Okay, limited life of business. The survival and continuity sole proprietorship firm depend upon only वन पर्सन. ओके, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये बिजनेस किसी व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा स्टार्ट किया जाता है, अकेला ओनर होता है. तो सो इट इज लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड लाइफ ऑफ दिस बिजनेस. सो इफ द प्रोप्राइटर फॉल सेल्स और बिकम इंसॉल्वेंट, देन बिजनेस में बी कम टू एंड आइदर इट शुड बी क्लोज. ओके, बंद हो जाएगी. यदि वो बीमार हो गए या कहीं आउट ऑफ स्टेट चला गया, किसी कारण से शॉप ओपन नहीं कर पाया बिजनेस, तो उसका बंद हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अकेला करता धरता यहाँ पर रहेगा. ठीक है. अनलिमिटेड लाइबिलिटीज. द सोल प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डिप्स. ओके, ऑल द डिप्स डिपेंड ऑन लाइबल फॉर, वो सारा जो डिप्स से कर्जा उसको वो खुद जिम्मेदार होता है. इन केस ऑफ द हेवी लॉसेज ऑफ प्रोप्राइटर विल नॉट ओनली सो लॉस हिज बिजनेस असेट, बट ही मे बी हैव टू सेल हिज ऑल पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे बैक हिज डेप्ट. ओके, इसमें ऐसा होता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है. यदि लॉस हो गया सपोज फॉर एन एग्जाम्पल किसी भी रीज़न से, तो उसका जो डेप्ट है बिजनेस का, उसको सारा देना होता है. और यदि केस में उसने सारा बिजनेस बेच के भी उसको पैसा नहीं दे पाया, तो उसका खुद का ऑन प्रॉपर्टी भी बेच के उसको पैसा देना होता है. ये उसका अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होता है कि वही जिम्मेदार होता है. अब नेक्स्ट लास्ट आता है फर्स्ट, वी ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्स,
सेकंड लाइफ लिमिटेड लाइफ होता है, जो कि वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता। यदि ऑनर है, यदि बीमार हो गए या कुछ हो जाता है तो बिज़नेस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लिमिटेड रिसोर्स होता है, वो ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकता है, ठीक है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी जिम्मेदार होता है कि उसमें यदि बिज़नेस जो है किसी कारण से लॉस होता है तो उसको बिज़नेस जो है वो सारा बेच के देना होता है, और यदि उससे भी डिप तो उसका कर्जा नहीं होता तो उसका खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के पैसा देना होता है। लास्ट आता है इसका लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। इन सोल प्रोप्राइटर फर्म ऑल द एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। सारी एक्टिविटी वही रॉ मटेरियल खरीदेगा, वही प्रोडक्शन करेगा, वही मैनेजमेंट करेगा, वही सेलिंग करेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं एक व्यक्ति ऑलराउंडर नहीं होता, सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। सो अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड, ठीक है। अ सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल person cannot be expert in all field, all rounder, okay, word we can use here, all rounder, okay. In cricket team we have seen example, okay. One person cannot take a bowling, batting, fielding, keeping, each and every master in each field, okay. It may be one either two in two field master, but he cannot be master in all subject. जैसा हम देख सकें सचिन ऐसा नहीं कर सकता कि हर मैच में सेंचुरी लगाएगा, हर मैच में 5 से 6 विकेट लेगा, हर बार विकेट कीपिंग करेगा, हर बार सारे कैच लेगा, ऐसा संभव नहीं होता, ठीक है। इसमें भी हैपन सम टाइम, बट एवरी फील्ड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पर्सन हर फील्ड में माहिर नहीं होता है, okay. And sole proprietor generally cannot afford to appoint especially in expert employees. The proprietor is overburdened with too many tasks, और इसके ऊपर बहुत सारा बर्डन होता है, ठीक है। सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रॉ मटेरियल, सेलिंग, परचेजिंग, प्रोडक्शन, हर चीज़ का, तो इतना मास्टर नहीं होता, जिसके कारण ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। सोल प्रोप्राइटरशिप अ सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, ठीक है। बस इससे ये सुटेबल होता है, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप suitable for enterprises which require personal attention and limited capital, such as local grocery shop, small bakery shop, tailoring shop, health clinic, doctors clinic, lawyer's office, etc. ये इसका एग्जांपल है कि एक सोल प्रोप्राइटर के तौर पे हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इस तरह के बिजनेस। बाकी बड़े के लिए हम इस पर नहीं कर सकते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।